علم ہو ساتھ میں عمل. اگر آدمی علم ہے نماز نہیں پڑھتا, علم ہے روزہ نہیں رکھتا, علم ہے زکات نہیں دیتا, علم ہے حج نہیں کرتا, علم ہے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, علم ہے حق بات نہیں بولتا, علم ہے دوسروں کی تمیز نہیں کرتا, تو علم تو ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں حضور بہت کامیاب ہے, فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہو ساتھ میں عمل ہو. تو علم ہے عمل بھی ہے. کہتے ہیں سرکار ایک بات بتائیے, جس کے پاس علم ہو جائے عمل ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا, وہی کامیاب ہے, وہی کامرہ ہے. فرماتے نہیں نہیں نہیں, کافر حضور کون کامیاب ہے؟ علم بھی ہے عمل بھی ہے, تب بھی کامیاب نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں علم ہو عمل ہو ساتھ میں اس کا اخلاص بہتر ہو. زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ. بولو گے سبحان اللہ تو فائدہ آپ کو ہے. حضرت ایک آدمی آج سے 4-5 دن پہلے میں جو ہے فرقہ گیا تھا, کہتے مولانا صاحب سبحان اللہ آپ زور سے کیوں بلواتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سنو سبحان اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے. حضرت سے پوچھئے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, تم کہو گے تب بھی پاک ہے, نہ کہو گے تب بھی پاک ہے. تم کہو گے مولا تو نے آسمان کو بنایا, مولا تو پاک ہے. زمین بنائی, مولا تو پاک ہے. شجر و حجر بنایا, مولا تو پاک ہے. جن و بشر پیدا کیا, مولا تو پاک ہے. آسمان میں سورج پیدا کیا, مولا تو پاک ہے. چاند کو بنایا, مولا تو پاک ہے. ستاروں کو بنایا, مولا تو پاک ہے. گھوڑے کو بنایا, مولا تو پاک ہے. بالے کو بنایا, مولا تو پاک ہے. سرمایہ دار کو بنایا, مولا تو پاک ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا, مولا تو پاک ہے. کہو گے تب بھی خدا پاک ہے, نہ کہو گے تب بھی خدا پاک ہے. تو کیوں کہلواتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ بندہ بار بار کہتا ہے مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے, مولا تو پاک ہے. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے, ابھی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جنہوں نے مجھے پاک کہا ہے اسے میں پاک کر رہا ہوں, اسے میں صاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اگر دنیا کے کسی بھی جگہ سے آپ یہاں سے چلے جائیے اسلام پور, ایک صابن لائیے, ہاتھ میں لگایا ہاتھ صاف, پیٹ میں لگایا پیٹ صاف, پیٹھ میں لگایا پیٹھ صاف, پیر میں لگایا پیر صاف, کپڑے میں لگایا کپڑا صاف, بالوں میں لگایا بال صاف, چہرے میں لگایا چہرہ صاف, تو صابن سے تمہارا ظاہر صاف ہوتا ہے. یاد رکھیے گا میرے دل کی گندگی صابن سے دھویا نہیں جاتا. جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو مولا اس کے ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے, اس کے باطن کو بھی صاف. زور سے بولو, زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ, رسول اللہ. بہت اچھے لوگ ہیں. حضرت ایک آدمی نے کہا پھر زور سے کیوں بلواتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی بھی بات میں بتا دیتا ہوں. ایک بات بتائیے, ایک آدمی مجرم ہو جائے, گنہگار ہو جائے, پاپی ہو جائے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے, اسے بیٹا یاد نہیں آئے گا, بیٹی یاد نہیں آئے گی, گھر والے یاد نہیں آئیں گے. وہ سوچے گا تو کم سے کم گواہ مل جائے تو جیل سے رہائی مل جائے. زور سے بولو, برابر ہے کہ جیل سے رہائی مل جائے, کیونکہ باپ آئے گا تو رہائی نہیں ملے گی, دادا آئے گا تو رہائی نہیں ملے گی. لیکن تو آدمی گواہ دے دے, آپ کوٹ میں جا کے گواہ دے دے, آپ تم جو اس کے اوپر آروپ لگائے ہو, یہ جو ملزم کہتے ہو یہ گناہ اس نے کیا نہیں ہے, تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. چھوڑا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولیے نا بھائی, چھوڑ دیا جائے گا. تو انسان وہ سوچتا ہے کہ کم سے کم دو گواہ مل جائے. قسم میدان محشر میں آج تو ہم سب ایک جگہ رہتے ہیں, حضرت بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, پاوکار علماء یہاں بیٹھے ہیں, شورا یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی پاوکار ہیں, میری مائیں بھی پاوکار ہے, سب کے سب بیٹھے ہیں. یہاں تو گنہگار بھی ہے, خطاکار بھی ہے, سیاکار بھی ہے, کچھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور کچھ نماز برباد بھی کرنے جاتے ہیں. ہمیں میں سے چور بھی ہے, ہمیں میں سے ڈاکہ دینے والا بھی ہے, ہمیں سے زنا کرنے والا ہے, ہمیں سے مسجد کو آباد کرنے والا ہے, ہم میں ہر کوئی ہے. لیکن کل میدان محشر قائم ہوگا, سورہ یاسین اٹھائیں گے, میرا رب فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قیامت کے میدان میں رب کہے گا گنہگاروں الگ ہو جاؤ, نیکوکاروں الگ ہو جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم.
गुनहगारों अलग हो जाओ, नेकोकारों अलग हो जाओ। हजरत अब नारा मत लगाइएगा, वक्त नहीं है। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे भाई सुन ले, मेरे चचा सुन ले, मेरे रफीक सुन ले, कल मैदान महशर में आज उलेमा से दूर भागते हो, आज आलिमों से दूर भागते हो, चाय की दुकान में उलेमा की तौहीन करते हो, पान की टपरी में उलेमा की तौहीन करते हो। याद रखिएगा, जिन उलेमा को तुमने वजू का पानी दिया है, कल मैदान महशर में कभी आलिम दीन को रब्बों को फरमाएगा, ऐ आलिम दीन चार तू जन्नत में चला जा। कभी ये जन्नत में जाने लगे थे, एक आदमी गुनाहों के सब पे रहेगा, गुनहगारों के सब पे रहेगा। वो कहेंगे मुफ्ती साहब मुझे पहचानते हैं? मुफ्ती साहब कहेंगे नहीं। कहा कि हुजूर देखिए ना, सीख से देखिए, मुझे पहचानिए, आप जन्नत में जा रहे हैं, मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। मुफ्ती साहब देखिए ना, मुझे पहचानिए। मुफ्ती साहब कहेंगे कैसे? उन्होंने कहा एक जलसा हुआ था, जश्न गौसुल वरा, खाना बना के लोगों ने रखा था, आप हमारे घर आए थे, मैंने वजू का पानी आपको दिया था, मैंने जो है पानी आपको पीने के लिए दिया था। लदी सके तो मन शरबत, वो कहेगा मैंने आपको पानी दिया था। मेरा रब कहेगा मेरा बंदा, जब उसने दुनिया में पानी दिया है वजू के लिए या पीने के लिए, उसका हाथ पकड़ ले, तू भी जन्नत में चला जा, उसे भी साथ में जन्नत में ले। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उलमा की कद्र कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। हजरत बात निकली थी, मेरे पास वक्त नहीं है, बार बार फोन आ रहा है, मुझे जाना भी है, लेकिन मैं वक्त से पहले आया था। मैंने कहा मुझे 9 बजे लेके चले जाइए, 1 घंटा कम से कम तकरीर कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा आना जाना बेकार हो जाएगा। सिर्फ हम नजराना लेने नहीं आते हैं, आपका चेहरा देखने नहीं आते हैं। उलमा तो हर वक्त चाहते हैं जो मुझे गाली दे उसके लिए भी मैं रास्ता जो है बताऊंगा, जो मुझे बुरा कहे उसे भी जन्नत का रास्ता दिखाऊंगा। उलमा तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अगर कभी मौका मिलेगा तो सिर्फ उलमा पर मुझे तकरीर कराइएगा। खुदा की कसम आज उलमा से लोग दूर भागते हैं। आप जानते हैं कयामत की सुबह तक ये पाक कौन, कयामत की सुबह तक मुस्तफा जाने रहमत का दीन कौन बताएगा? यही उलमा किराम बताएंगे। आज दीन से हम दूर हैं, मदरसों से दूर हैं, खानकाहों से दूर हैं। हजरत मोहतरम वक्त नहीं है, नहीं तो मैं उधर जाता। आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब दो गवाह मिल जाएंगे तो आदमी को रिहाई मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, एक बार जोर से कहिए तो फायदा बता देता है। जोर से बोले और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जोर से बोले हो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मेरा बंदा दुनिया से क्या लेकर आए हो? आज तो जहन्नम के तरफ तू खड़ा है, जहन्नमियों के लिस्ट में खड़ा है। तुमने दुनिया से कुछ लाया है? तो एक आदमी कहेगा मौला एक दिन जलसा हो रहा था, 29 तारीख थी, वो जलसा 28 तारीख थी, उस जलसे में मैंने सुभान अल्लाह कहा था। मौला मैंने तुझे पाक कहा था, मौला मैंने तुझे साफ कहा था। मेरा रब कहेगा अगर तूने मुझे पाक कहा था तो कोई गवाह है, कोई दलील है तो तुम कहोगे मौला मैंने जोर से कहा था। हजरत कहेंगे मैंने सुना था, शायद साहब कहेंगे मैंने सुना था, पीछे वाला कहेंगे मैंने सुना था, दाएं वाला कहेगा मैंने सुना था, बाएं वाला कहेगा मैंने सुना था। तो मिल जाए तो रिहाई मिल जाती है। जब इतने लोग कहेंगे मौला इसने पाक का मैंने सुना है, तब फरमाएगा फरिश्ते जहन्नम से निकाल, जन्नत की बशारत दे दे। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अन्नास कुल्लुहुम मौता इल्ला आलिमून। हज़रत मैं ये जुमला कह रहा था, आलिम हो जाना काम नहीं है। कहा कि आलिम हो जाना ठीक है, कामयाब का नहीं। कहा फिर कहा आलिम भी हो साथ में अमल भी। हमारे सुन्नियों के जलसे में ले नारा दे नारा, मजार में उर्श हो तो देखिएगा अगर 1000 मर्द है तो 6000 औरत है। कौन रोकेगा? हजरत कौन रोकेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस इलाके के अक्सर मज़ारात पर आया। जितने मर्द नहीं होते उससे ज्यादा औरतें होती है। कहते हैं हजरत रोकने का तरीका नहीं है, कैसे रोका जाए? वो किसके घर की बच्चियां जाती है? आपके घर की, हमारे घर की, हमारे मुआशरे की, हमारे मोहल्ले की, हमारी बस्ती की। एक काम कीजिए, हर बाप कहे बेटी सुन ले, अल्लाह अगर दौलत दे देगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो तू गरीब नवाज के रोजा देखने के लिए नहीं है, गुंबद ख़ज़रा देखने के लिए। तू मत जा,
बेटी को तुम रोको, बहन को तुम रोको, माँ को तुम रोको, मेरे घर की औरतों को मैं रोकूं, आपके घर की औरतों को आप रोको। एक दिन ऐसा आएगा सब आदमी अपने घर की औरतों को रोकेगा। खुदा की कसम गुनाह करने से मेरी बेटियां बच जाएगी। पूछिए हजरत से, जब कोई औरत किसी मज़ारात के लिए निकलती है तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत। और आप करते क्या हैं? आप कहते हैं हजरत जाने दीजिए ना, और उसमें जाने के बाद मेरी बेटियां इस कदर गुनाह करती है। मैं तो कहता हूँ किशनगंज जिला ही नहीं, उत्तर दिनाजपुर जिला ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, बल्कि इतनी तकरीरों में तो होना ये चाहिए था। जो भी बच्ची जलसे में आती फातिमा की सच्ची कनीज बनकर पूरे जिस्म में बुर्का पहन कर आती, लेकिन हमारी बेटियों का चेहरा क्या है? और जब वो चेहरा खोल कर आती है देखने वाला उसे देखता है, ये भी गुनाहों पर आमदा होता है, और वो देखती है वो भी गुनाह पे आमदा। जलसों को गुनाह के बाजार बना दिया। इतनी दुकानें, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इतनी दुकानें लगाने की? मुझे मेरे गौस को खुश करना है, कह दो सुभान अल्लाह। बगैर आज तक सुने किसी जलसे में कि बगैर चाय की दुकान और बगैर पान नहीं खा करके 15 आदमी इंतकाल हो गया? हजरत सुने कभी? नहीं। हुजूर आप? नहीं। साकिब भाई? नहीं ना? तो जब बगैर चाय पिए बगैर पान खाए आदमी जिंदा रह सकता है, तो क्या आपके जलसे में अगर ये दुकानें बंद हो जाए तो जलसा कामयाब नहीं हो सकता? बंद कीजिए ना, देखिए तो पहले अपने आप को बदलना होगा। खुदी को कर बलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? अपने आप को बेहतर करो यार। और मैं कहता हूं हजरत के सामने हाथ जोड़कर, हजरत के उस स्टेज में मंसर नवाज की तकरीर होती है, खुदा की कसम मेरे सीने में दर्द है। हर दिन जलसे में जाते हैं लेकिन चेंजिंग माहौल में तब्दीली हमें नजर नहीं आती। आप जरा सोचिएगा, इतनी बातें हम लोग करते हैं, इतनी तकरीरें करते हैं, हमारे मुआशरे में आज तक जो है बदलाव नहीं आ रहा है। क्या वजह है? कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। जिस इंसान के पास ये सही सोच और समझ और फिक्र ना हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं जो निवाला मेरे पेट में डालता हूँ ये हलाल है या हराम है, जब इसकी हम तमीज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ना मस्जिद में दिल लगेगा, ना मदरसों में दिल लगेगा, ना खानकाहों में दिल लगेगा, ना अच्छी बात सुनने में दिल लगेगा। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। खुदा की कसम कोई मुफ्ती साहब आपको नहीं जान सकता इतना, कोई पीर आपको इतना नहीं जान सकता, कोई बड़ा से बड़ा आलिम आपको इतना नहीं जान सकता जितना तुम अपने आप को जान सकते हो। अपने आप से ज्यादा कोई किसी को नहीं जान सकता। मैं कितना बड़ा पापी हूं मैं जानता हूं, मैंने कितना गुनाह किया मैं जानता हूं। खुदा रात की तारीकी में उठकर रोया करो। हजरत हुजूर हाफिज़े मिल्लत का एक फरमान मैंने पढ़ा कि जिस्म की वर्जिश, जिस्म की कुव्वत के लिए वर्जिश का होना जरूरी है, और रूह की जो है वर्जिश के लिए तहज्जुद का पढ़ना जरूरी है। एक जुमला और बोलने जा रहा हूं, टाइम नहीं है, आखिरी बात बोलता हूं सुनिए। इंसान का जिस्म बीमार होता है। किशनगंज, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, पूर्णिया, कोलकाता, एम्स दिल्ली, वहां से निकले भेलोर, वहां से निकले बेंगलोर, वहां से निकले हैदराबाद। अल्लाह ने तौफीक दी तो बहुत लोग अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र, हांगकांग जाता है। क्यों? जिस्म बीमार हो गया। जब जिस्म बीमार हो तो तुम जहां से वहां जाते हो, कभी ये सोचे हो तुम्हारी रूह बीमार हो गई है। कभी उलमा के करीब गए, कभी अल्लाह वालों के पास गए। जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करता है, रूह बीमार हो तो उलमाए रब्बानी इलाज करते हैं, अल्लाह वाले इलाज। क्या बात है, वाह। जिस्म भी बीमार, रूह भी बीमार। और मैं तो कहता हूं, एक शायर ने कहा था, मैं मरीज़े मोहब्बत हूं,